नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और द मैरियन फाउंडेशन और सेंट पॉल स्कूल के ट्रस्टी अमरीश चंद्रा के द्वारा कल द गार्डियन ऑफ सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत लोग हैं, जो गार्जियन हैं, उनको सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ सांसद एक्टर गोरखपुर के सांसद और एक्टर रवि किशन शुक्ल मौजूद हैं, जिनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिली। कैसे वो गए, कैसे उन्होंने फिल्मों में काम किया, कैसे भोजपुरी फिल्मों में काम किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन का सफर कैसे तय किया, इसके बारे में रवि किशन शुक्ला ने बातचीत में भी बताया। और साथ ही साथ चर्चाएं हुई सस्टेनेबिलिटी के बारे में, यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्यों के बारे में भी चर्चा हुई। तो ग्राउंड जीरो पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या पूरा कार्यक्रम रहा। And yes, of course, it has been a kick-off of 48 hours, high impact webinars all together. Without further ado, let's get started towards the program as you all have waited for a very long time. To start off this an inspiring message on the importance of sustainability and collective responsibility, I would like to invite on the stage a very esteemed educationist and a global leader to deliver the opening message and to formally introduce our esteemed guest. With a huge round of applause, I would like to request and I would like to invite Mr. Amrish Chandra on the stage. In the city of Gorakhpur. There's lot to talk about as the evening host, but I would like to take this opportunity to set a few things in order before we begin. Very true to goal number 17, nothing is really possible without participation, cooperation and collaboration. In the lingo of the generation, when they look at Instagrams, they talk of collab. This is basically defined in goal number 17. And therefore, as this evening opens up, we will see that basically being brought to life. But before I go on and talk about the goal number 17, the participation of the eminence of the people that sit here today, may I tell their name and very welcome to your name in City of Gorakhpur. I would like to give this opportunity to welcome and our guest of honor for this first half, our dear Commissioner, Mr. Anand Deegar. Thank you very much, sir, for taking time, for coming, for the support, for whatever we have been able to do as an institution, as an organization, and a foundation in the city has greatly benefited from your leadership as Commissioner since you have taken office in the city of Gorakhpur. So on behalf of the St. Paul's family, the Marian Foundation, thank you very much, sir. As I was talking about collab, and I was talking about goal number 17, I would like to talk to you and shed light on a few people of eminence that are here, that have really made it possible for this journey. For us talking about sustainability, then sustainability goals, and taking it beyond the corridors and walls would not have been easy had it not been for this work, and they have been partners with us as we have sketched this journey of the second chapter of the art of sustainability. Going further, I would like to take this opportunity to also recall my deep appreciation for Mr. Abid Sinha, who on a very short notice has agreed to come, detour his plan, change his plan. He is a second brand with the ease of doing business, has worked with various portfolios within and outside the government of India, but he is exceptional when he talks about the deep-rooted significance of the heritage of India, and he says sustainability is our legacy, and I love that. Sustainability is not a unique from imported from outside, but it is legacy. Thank you very much. I cannot but acknowledge the presence of the Department of Planning, the
UP. Dr. Anand, thank you very much, sir, for coming here, staying with us for 2 days, and also in his absence, a deep appreciation from Mr. Alok Kumar, the Principal Secretary, who was with us earlier in the day today, and Mr. Vivek Jain, team leader, maybe in tourism, has spent about many hours with children in St. Paul's trying to teach and talk to them about tourism. My last, but this does not mean, please forgive me if I forgot anything. It takes a lot of passion, commitment, understanding of the subject for somebody to do endless studies in a state, then do a road journey. Then it's easy to say to take a job, but then take a job, spend the night somewhere, get up at 5 o'clock in the morning, take up at 7:30, meet us at the airport, come to St. Paul, and again come here. Thank you very much, sir, for your commitment to sustainability, for your commitment to your family, for your commitment to the city of Gorakhpur. And I can tell you that with your leadership, and we are only going to make Gorakhpur as the first SDG aware city of the world. Handling things is for me it's a learning experience. How can you do that by handling spoon as well as doing cheesy dishes? Completely a new world to me, but yeah, with this lovely partner, I can say a partner of life, Preeti ji, all your inspiration, I believe you are saying में इनको देखा था, हमने इनको फिल्मों में देखा और साउथ की तेलुगु फिल्मों में नाउ शी वाज देयर, फ्लाइट में भी मुलाकात हुई, हेल्थ से लेके उन्होंने अपने जीवन में नया पड़ाव लिया। तो अमरीश जी को मैं जितना धन्यवाद दूंगा और इस यूनिवर्सिटी की वही कर रहे हैं जो शायद मैं करने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। एंड स्टूडेंट फीमेल होकर है स्कूल जर्नी एक कमाने की जगह होती है प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन मैं सेंट पॉल के साथ ही नहीं देखता और आई एम मोटिंग नाउ। जब भी कभी वो सेटल हुए तो उसको उन्होंने त्यागा, भोजपुरी के सुपरस्टार हुए तो उसको त्यागा, मेन स्ट्रीम के सुपरस्टार हुए, फिर साउथ के सुपरस्टार हुए और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुए। उनसे आप सीख सकते हैं कि वो त्यागते चले जाते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, अब वो ये कह भी नहीं सकते क्योंकि जिंदगी इतनी पूर्ण है उनकी कि वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है और उन लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है कि हीरो कैसा होता है, तो हीरो ऐसा होता है। थैंक यू मिस्टर जी। मुझे पता नहीं लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कुछ तलाश चलती रहती है और एक तो था कि मैं अनजान मौत नहीं मरना चाहता। मुझे बचपन से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अननोन डेथ नहीं चाहिए, एक बहुत क्लियर था। देन जरूरत थी पैसे की कि हम चाहते रहे कि कुछ पैसा कमाएं ताकि हम अपने माई खातिर अच्छा साड़ी ले लें, बाबू खातिर बढ़िया धोती खरीदें, अच्छा मकान बना लें। सो वो बहुत ज़रूरत है। दूसरा एक प्रेम है कि भोजपुरी भाषा है, मातृभाषा की कैसे जनवाएं कि बहुत केला वाला दूध वाला, कहीं केला वाला दूध वाला भाजी वाला लोगों का भाषा वो फाइट थी जो गाँव में। और जो डीपीएस में वो भी बात कर रहे हैं और गाँव में भी कर रहे हैं। तो जब आप ट्रेन की जर्नी शुरू किए, अम्मा ने बोला तुम्हारी जान बचानी ज्यादा जरूरी है पिता से, और वो आप आज बाद में कहे मेरे पहले गुरु थे। आप कभी भी उनको मिस करते हैं और वो लास्ट में बहुत बड़े खुश थे इस बात से कि मेरा बेटा इतना विराट हो चुका है। बिकॉज मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। माय पापा यूज्ड टू नॉट लाइक कि मैं रामलीला में एक्टिंग करूँ, सीता जी का रोल करता था। मैं ये वाला डोंट लुक एट मी लाइक दिस एंड नाउ इज ऑल बिल्ट अप वर्कआउट बॉडी, तो वहाँ ही मशीन की वजह से ऐसा हो गया। पहले मैं बहुत दुबला पतला बहुत सुंदर सीता माता लगता था। मैं जब जब आप सलमान खान के साथ भी आए थे तो दुबले पतले ही। हाँ, तेरे नाम फिल्म थी जी, वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में गया। और आप पंडित का ही उसमें किरदार भी आपने निभाया जो उसके बाद से नदी मुड़ गई। That I copied my father.
जो तेरे नाम का पंडित मैं जो बना था। और उनके गुस्से से तो बड़े तरस थे। Yeah, because he was a very short-tempered man, बहुत ही aggressive इंसान थे, पहलवान थे, विद्वान थे, मेरे गुरु थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल इज नो मोर, बट मैंने उनके बाद किसी को अपना गुरु नहीं माना। उन्होंने मुझे आज जो भी मैं या बोल पा रहा हूँ या मैं अध्यात्म से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। आपकी एक वेरिएशन है, उन्होंने कहा कि जब भी वो ये कहते हैं तो आप ये भूल चल जाते हैं कि वो दशरथी तो थे जो 14 साल के लिए आपको निकाल दिए थे। How sweet. Somebody said who knows who has worked with you. Now I will ask you about something very important because you have to go and meet the Honorable Chief Minister. The whole country wants to know about what is your Oscar speech. Will it be in Bhojpuri? Will it talk about गोरखपुर, दिल्ली, भारत, और क्या अभी ऐसे ही कुछ करेंगे? भारत कैसा लगता है? पर मिश्रा जी थैंक यू सो मच। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मेरे पास स्पीच क्या देनी। स्पीच आपको इसलिए देनी होगी रवि भैया क्योंकि सारी आपने आज एक बात और कही थी फ्लाइट में कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो सब कायनात जुड़ जाती है। आमिर खान ने 2001 में लास्ट टाइम फीचर फिल्म को नॉमिनेट कराया था लगान को, वही आमिर खान आपको लेकर जा रहे हैं और अभी आमिर खान की पिक्चर उतनी चली नहीं है तो आपकी पिक्चर के पीछे जा रहे हैं और मैं इससे अच्छे से इसमें कह रहा हूं कि उस पर वो जा रहे हैं और ये उनका वो मौका है कि वो बैटिंग जो वहां कंप्लीट नहीं हुई थी इस बार वो कर सकते हैं और भारत का नाम आपके हाथों से रोशन कर सकते हैं। या आई मस्ट मैं मंच का माध्यम से मैं थैंक आमिर खान दिल से एंड खास कर किरण राव। आमिर खान को ये फिल्म करनी थी, मैं भी एक सच आपको बताऊं, मेरे किरदार को ही वांटेड टू एक्ट, उन्होंने पुलिस ऑफिसर का ड्रेस भी बनाया था, ऑडिशन भी दिया था, बट किरण राव जो उनकी एक्स वाइफ हैं वो चाहती थी, उन्होंने मेरी फिल्म अनुराग कश्यप की मुक्काबाज देखी, उन्होंने कहा मुझे रवि किशन ही चाहिए बिकॉज वो कॉप लगना चाहिए कि उस परिवेश से है। बिकॉज कितने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो इमेज को शायद वो निभा नहीं, उनकी सोच कितनी अच्छी थी। और फिर आमिर खान ने जब फिल्म देखी तो उन्होंने कहा मैं शायद रवि की तरह कर नहीं सकता था, रवि ने मैं ये किरदार रवि नहीं किया, मैं शायद ऐसा नहीं कर सकता। ये उनका बड़पन, इसीलिए इतने बड़े कलाकार, ये आमिर खान का बड़पन। थैंक यू, समय दिखाया इन्होंने, समय ईश्वर दिखाता है ग्रह नक्षत्र। मैंने नहीं सोचा था, मैं सोचा था नेशनल अवार्ड तक जाएगी फिल्म, या तो फिल्म हिट होगी, ऑस्कर में जाएगी, ये है मैंने तो महिला शक्ति जो आपके पीछे पूरी ताकत से माई आपके साथ थी, उन्होंने बोला ट्रेन में बैठ जा 500 आज फिर आपके इलेक्ट्रेट से उसमें भी महिलाएं आपके साथ हैं, लापता आपकी वाइफ, आपकी बेटियां जो इतनी सक्षम है और अब आपकी पूरी ये जो कायनात है महिला जो आपको सपोर्ट करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने एसडीजी के गोल नंबर 5 को सपोर्ट किया। एसडीजी के गोल नंबर 5 इज वुमेन एम्पावरमेंट और उसको आपने लापता लेडीज में सपोर्ट किया है और ये मूवी में वही होने जा रहा है जो लोकसभा के इलेक्शन में हुआ है। Our next person is a person who has, as I said in my introduction, has taken the initiative under the Health and Wellness Council to set up a but has been awarded here for his unique initiative of the Sustainable TR globally. Mr. Kamal to please come on stage and take credibility of creating a green sustainable TR in every program, in every initiative that you do. Mr. Kamal. Bombay ocean would not be clean and cleaner, but not Guadala, who took the initiative and has found the right to develop the Yamuna River. This is the achievement of Mishra.
50 साल पहले नहीं जा रहा हूँ। और इन 50 साल पहले में आपकी इस देश में संस्कृति शुरू हुई है खाद बनाने की। यही कंट्रीज, यही कंपनीज आपके पास 50 साल के बाद वापस आती हैं और कहती हैं माय गॉड व्हाट आर यू ईटिंग, these all are pesticides, these all are things which you should not eat, why don't you go for organic, we also give you organic certificate। एक नैरेटिव में, एक नोशन में वो आपको फर्टिलाइजर बेच के चले जाते हैं, 50 साल के बाद आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बेचते हैं। आज चूंकि मैं ही जो बिजनेस का डायरेक्टर हूँ, बहुत सारे कंपनीज को रेड लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में और येलो लिस्ट में और ब्राउन लिस्ट में रखा गया है। जो सीमेंट की, माइंस की, ऑयल्स की हैं, उनको ESG के कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। उन सारी कंपनीज को क्या करना चाहिए ESG को मीट करने के लिए और SDG को मीट करने के लिए, उसका कोई फार्मूला, कोई अर्थमेटिक, कोई एल्गोरिथम नहीं है। ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है, सब्जेक्टिव नैरेटिव है, जिसको आप एक ESG एथिकल गवर्नेंस कमिटी से अप्रूव कराते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, 15 लोगों की टीम आपको आपका काम करना सिखाती। सो ये नैरेटिव्स की वॉर में हमारा देश, हमारी संस्कृति कहाँ खड़ी है, इसका जो मैसेज मुझे जो थोड़ा सा वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके विचारों को समझने का, सुनने का मिला। अब प्रधानमंत्री ने तो औपचारिकताएं बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे वहां गुजरात में उनके 2 बड़े क्लियर प्रायोरिटीज, जिसको मैं कह सकता हूँ कि प्रधान प्राथमिकताएं थी, वो थी हेल्थ और एनवायरमेंट। सर, आज इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था हम लोग का बहुत सालों से सस्टेनेबिलिटी या सतत लक्ष्य गोल पर काम चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने मेरियन फाउंडेशन, हाउस ऑफ मोज़ेक, इसके तहत हम सारा सस्टेनेबल काम करते हैं और सेंट पॉल स्कूल के तहत हम लोगों ने ये काम उठाया है। 2014 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। 2020 में सबसे पहली बार हमने इसका जो है इस काम का आगाज किया था और अनाउंस किया था। गार्जियंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो लिखा हुआ है, इस चीज को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने शुरू किया था और पहली दफा वहां पर अवार्ड दिया था। उसके पहली अवार्डी आज हमारे साथ हैं श्री सुधीर मिश्रा जी, जो कि इंडिया के नंबर 1 ग्रीन लॉयर हैं जो कहा जाता है, और वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर कई हमारे सभाओं का मॉडरेशन कर रहे हैं। आज की सभा पहली बार चूंकि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के नाम से हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं, ये उस प्रयास को आगे ले जाता है जब हम सेंट पॉल स्कूल को एक पहला SDG अवेयर यानी सतत लक्ष्य चेतक अगर कहा जाए स्कूल की तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई और लोगों को, जैसे परसों हमने गुलरिया थाने को एक SDG अवेयर थाना की तरह से उसको ADG महोदय के हाथ से उसको खोला, मेडिकल कॉलेज की चौकी। और आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी, DD यूनिवर्सिटी गोरखपुर के साथ मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन जी के साथ मिलके हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी एक पहला SDG अवेयर यूनिवर्सिटी करने में हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रयास ये है आज की शाम का कि इंडिया भर से जितने भी लोग सस्टेनेबिलिटी पे या सतत लोग पे काम करते हैं उनको यहाँ बुलाएं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख सचिव थे श्री आलोक कुमार जी, वो दोपहर में हमारे साथ थे, और अर्बन ये अपने इको टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, वो भी हमारे साथ थे कि किस तरीके से हम अपने तमाम ताकतों को लेके गोरखपुर शहर को एक SDG अवेयर शहर बना सकते हैं। पुलिस चौकी हो गई, पुलिस थाना हो गया, यूनिवर्सिटी हो रही है, एक स्कूल हो गया है, बरिस्ता कैफे पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि SDG सतत लक्ष्य गोल को 2030 तक पूरा करने का ये प्लान यूनाइटेड नेशन ने दिया है। भारतवर्ष में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा है कि अगर भारत को ये अचीव करना है तो हमें यूपी को अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने इस प्रयास में यूपी सरकार के साथ, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाते हैं और एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को अगर SDG अवेयर करना है तो यहाँ आके इन चीजों को देख सके। साथ ही साथ आज 12-13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमाल के काम किए हैं सतत लक्ष्य गोल के लिए, उनको भी हम बुलाएं और सम्मान कर रहे हैं गार्जियन सस्टेनेबिलिटी के साथ। उनको हम बुला रहे हैं। आपको जाना जाता है सर, इस कार्य को करने में कितनी कठिनाई हुई और कैसे अवेयर करते? तो जब मैंने 1998 में IAS का इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उस समय मेरा परिवार बहुत परेशान था। मेरे पिताजी की शादी गोरखपुर में हुई थी
वो बिहार में पीसीएस ऑफिसर थे। और उसके बाद मरता क्या न करता मैं लॉयर बना, पर जब मैं लॉयर बना तो मुझे उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता था। और मैं पर्यावरण, जानवरों, वाइल्ड लाइफ के लिए हमेशा से कमिटेड था। मैंने 200 से ज्यादा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एरियाज में ट्रैवल किया और हजारों लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोसिक्यूशन में टीच किया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, पुलिस के थे, जजेस को भी ट्रेन किया। और यूएस गवर्नमेंट ने मुझे एक फेलोशिप के लिए बुलाया 2005 में, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। वहां जाके एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिला। पर मेरी स्टोरी इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि मैं सिवान से 10th किया, बांका से 12th किया, पेड़ों के नीचे पढ़ाई की और अमेरिका में जाके फुलब्राइट एक्ट में अमेरिका का स्कॉलर बना। और आज मैं लंदन में डोर टेनेंट हूँ। मैं लंदन में भी प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एक बड़ी लॉ फर्म चलाता हूँ। अब मैं ये नहीं मानता कि सबको कंपटीशन क्लियर करने की जरूरत है। सभी को अगर IAS IPS नहीं बने या सरकारी सेवा में नहीं गए तो उनके पास करियर नहीं है। करियर के बहुत अपॉर्चुनिटीज खुले हैं और क्लाइमेट चेंज और SDG और एनवायरमेंट में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज खुले हैं। तो मुझे आज जब मैं रवि किशन जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, हम फ्लाइट में एक साथ आए थे, तो मैंने यही बोला कि हमारे नायक और हमारे हीरो बदलने चाहिए। हमारा नायक और हीरो ये नहीं हो कि हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट की पोस्ट अगर सरकार की निकलेगी तो PhD उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप औरों का हक भी मार रहे हैं। और हम नए हीरोज नहीं तैयार कर रहे हैं। हम नए जॉब्स को 21वीं शताब्दी में नहीं बता रहे हैं कि आज कोई फैशन डिजाइनर हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, उसकी भी उतनी ही महत्ता है सोसाइटी में जितनी गवर्नमेंट ऑफिसर की है। तो इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो लगता है कि कुछ सार्थक पहल हो पा रही है, लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि हम अगर वापस उस मानसिकता में जाएंगे कि हम कास्ट की बात करें, कास्ट के अराउंड ही घूमते रहेंगे, तो हम कैसे फ्यूचर पे बात करेंगे जहां नई नई अपॉर्चुनिटीज पूरे वर्ल्ड को मिल रही है। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, आप एक IT सुपर पावर हो और आप इतने सारे इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हो, इतने एरोड्रम्स बना रहे हो, इतने फ्लाइट्स चला रहे हो, इतनी अच्छी आपकी इकोनॉमी कर रही है और आप सबको कह रहे हो कि आप सिक्योर्ड जॉब्स में जाओ और उसके बाद अपने रिटायरमेंट को प्लान करो। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको प्रयत्नशील रहना होगा। और रवि किशन जी उसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि झोपड़ी से निकलकर आज वो पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है और हम सब उसी यात्रा को कर रहे हैं। मैं कम से कम 40 कंट्रीज में जा चुका हूँ और मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मेरा किसी सरकारी नौकरी में कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं आज जिस तरीके से चाहता हूँ एक अच्छा टैक्स पेयर होकर अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू।